whether the function, note down the function first of all, please everyone. Note down the function x cube minus 3x square plus 3x plus 2. x cube minus 3x square, क्या था बाकी फिर? plus 3x plus 2. Okay, plus 3x plus 2. It is plus 3x plus 2. Now we have to check in which interval the function is increasing and in which interval the function is decreasing. So we have to, first of all, in our mind, what we have to do for increasing and decreasing function must satisfy the conditions of Lagrange's mean value theorem. Say yes or no? Yes पहले sir. फंक्शन Yes, sir. Lagrange's mean Yes, value sir. theorem सेटिस्फाई करना चाहिए. देखो ये तो सिंपली पॉलिनोमियल है, सो डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा, देयरफॉर Lagrange's mean value theorem एप्लीकेबल हो जाएगी इसके ऊपर. से यस और नो? Yes sir. Okay, Yes, so Yes, first sir. condition for our theorem. So here f satisfies, suppose call this to be fx, पहले बोलना पड़ेगा इसको f. So here f satisfies the conditions of LMVT. So first hypothesis satisfied. So our basic task is to find out the interval in which f dash x behaves different, that is greater than 0. फॉर इंक्रीजिंग, ये तो रफ मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना कैसे वो तो हम पीडीएफ से देखेंगे, सिर्फ यू हैव टू सी हाउ टू सॉल्व रफली. फॉर डिक्रीजिंग वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल इन विच डेरिवेटिव इज लेस देन 0, दैट इज डिक्रीजिंग. से यस और नो? Yes sir. Now, so first task is, our first task is to find out derivative. What is the derivative of this function? F dash x, this is nothing but 3x square minus 6x plus 3, correct? What you can do? Yes, sir. Yes sir. 3 common, x square minus x plus 1, 2x, sorry, plus 1. What is this? This is nothing but x minus 1 whole square. Minus 1 whole. Okay, so what you can do? What you can do now? What now? X equal to 1. Now observe 3x minus 1 square, ठीक है? So square of something that is always greater than or equals to 0 for any value of x. Say yes or no? Yes sir. Yes. And this is a positive number, so this is also greater than 0. Yes sir. So मतलब क्या हो जाएगा? For all x belongs to R, f is Increasing. done. इसमें कुछ था टफ ये क्वेश्चन? No sir. No sir. No, sir. Okay, shall we move ahead? Yes sir. Okay, good. So here fx is continuous and differentiable at everywhere, so it satisfies the conditions of LMVT. Now we estimate the derivative of this, and which is यहाँ पे आप है ना इसको थोड़ा और modify कर सकते हो. What you can do, one thing, this is greater than or equals to 0 for avoid the confusion, because आप जब अगर x is equals to 1 लोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, 1 minus 1 that is 0. So for avoid the confusion, what you can do, you can replace these by greater than or equals to 0. Say yes or no? Yes, sir. Yes sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. लो तो नेक्स्ट एग्जाम. क्वेश्चन दिखा देंगे क्या? हाँ लिखो लिखते जाओ, साथ में लिखते जाओ. कोई तो आइडियल स्टूडेंट बनो. Yes sir, हो गया. Done? Everyone? Sir, Yes, sir. please, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, move to the next question. Okay, so चलो ये तो ठीक है, ये तो लिखे हैं सब मैंने, वो तो मैं कर पाऊंगा. हम बेसिकली देख लेते फटाफट, ठीक है? अपने सिर्फ फॉर आवर पर्पस, नॉट द पर्पस ऑफ PDF. Okay, let me give the very simple example. fx is equals to x. We will do it by two methods. First of all, we know that what is the graph of this function, kind of. Yes Say yes sir. or no? So अगर जैसे ही हम Yes. ये डायरेक्शन में x की तरफ जाते हैं तो y जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है,
इसका मतलब ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग Increase. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर सेकंड जो हमारा Yes, यूजुअल sir. मेथड है, देखो दिस इज अ पॉलिनोमियल सो सेटिस्फाई LMBT. Second condition is find out its derivative, that is 1, which is strictly greater than 0. So what? Increasing? Say yes or no. Increasing. yes, sir. यस सर Yes, Now sir. the third Yes, one, sir. for x1 less than x2, what is f of x1? That is also x1. What is f of x2? That is x2. X2. And we know that x1 is strictly less than x2, therefore we can very well replace this also. So what is this? This is the usual definition of Increase. increasing function. This is some Yes. theoretical, this is your geometrical. Clear है सबको? Yes, sir. सर Okay. Yes, Yes, sir. sir. Clear है तो फिर कुछ problem नहीं है. Now move to the next. What you can do? Take your x belongs to open interval 0 to infinity. Then, okay, for avoid confusion, take this to be 1. What about the function fx is equals to log x? Can you say anything regarding this? Increasing. जब अभी तक हम क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल के लिए हम सेट ऑफ आर पे बात कर रहे थे. नाउ वी रिस्ट्रिक्ट अवर डोमेन टू ओपन इंटरवल 1 to infinity. What you can say about this? Increasing order है. कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग. ओके, वेरी गुड. कुछ नहीं करना है, log x फंक्शन है और उसका डोमेन हमने बहुत अच्छा ले रखा है जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो LMBT तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी, दैट इज नॉट एन इशू. एंड इसका डेरिवेटिव 1 by x विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to infinity. से यस और नो? तो ये सर increase हो डोमेन जाएगा. जीरो ले सकते सर डोमेन 0 लेते तो क्या होता? उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जब हम सर, 0 से क्वेश्चन x के बीच, तो क्या होता है ना कि log x विल बी नेगेटिव. सो थोड़ा वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा. सो मैंने क्या, ये जस्ट इलस्ट्रेशन है. सो आई टेक द डोमेन 1 to infinity. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वहाँ पे log माइनस होता है एंड log x इज पॉजिटिव इफ 1 is less than infinity. ओके. ओके सर. हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन था आपका? लॉग लॉग नेगेटिव बट होगा बेस भी लेकिन का- उसका बेस डेरिवेटिव भी तो बताना पॉजिटिव ही पड़ेगा आएगा ना 1 by हाँ, x. मैंने सिर्फ आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी लगे ना, उसके लिए डोमेन को मैंने और छोटा कर दिया. अदरवाइज यू कैन वेरी वेल टेक फ्रॉम 0 to infinity. That is not an issue. Getting? नहीं Say yes or no? यस सर. सर. यस हाँ सर. सर एक और बोलो बोलो. सर हाँ बोलो. सर अगर लॉग का बेस फ्रैक्शन में हो तो वो डिक्रीजिंग रहता है ना शायद कि वी आई शुड चेक. मैंने ये जो था वो नेचुरल लॉगरिथम लिया है. एक बार वो चेक करना पड़ेगा वो, अगर आप बोल रहे हो तो. ओके सर. Okay. So, shall we move ahead? Now, what about our sine function? Kind of ग्राफ होता है उसका, कंटिन्यू पे और Yes. रहेगा, ठीक है. और सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. एक मिनट. हाँ, ओके. सो सी दिस क्वेश्चन. अब देखो, अब हम यहाँ पे थोड़े केसेस कंसीडर करेंगे. ये तो सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ. दिस इज नॉट अवर बेसिक टास्क. fx is equals to which? This is the graph of. Sin x. Okay. So see Sin this. x. These graph
इफ वी टेक फ्रॉम हियर टू पाई बाई टू के करस्पॉन्डिंग 1, तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, देन पाई बाई 2 से वापस डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ आके फिर से इंक्रीज हो रहा है. सो द फंक्शन इज नॉट बिहेवियरिंग गुड. समटाइम्स इट इज इंक्रीजिंग, sometimes it is decreasing. But what we can do, if we consider, if we take some part of the graph. डोमेन सर डोमेन ले लो माइनस हाँ डोमेन एग्जैक्टली. तो फंक्शन का आपका 1 भी हो जाएगा, 1 2 भी हो जाएगा, इंक्रीजिंग भी हो जाएगा. आप इसको ऐसा ले लोगे ना, डोमेन -π/2 to π/2, तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो जाएगा एज वेल एज 1 1 एंड ऑन 2 भी हो जाएगा. ओके गुड, इतना पता है. दैट इज वेरी गुड. ओके सो ये तो से बेसिक इलस्ट्रेशन. नाउ कम टू द क्वेश्चन. व्हाट अबाउट fx इज इक्वल टू e raised to x? सर ऑन टू फंक्शन क्या होता है? नो सॉरी, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? आपने 12th क्लास जंप करी? नो सर. नहीं सर भूल. तो फिर ओके चलो मैं फटाफट क्विकली बता देता हूँ. सपोज इफ यू हैव अ फंक्शन d फ्रॉम d डैश, मतलब आपका एक फंक्शन है d टू d डैश. सो दिस इज बेसिकली नोन एज डोमेन, एंड अगर आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये आपका डोमेन ले लो d. यू हैव अ मैपिंग सपोज f, this is your codomain d. Now taking, you will have some values here and you apply your f on m. तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ हमको मिलेगा एंड सो ऑन, सबके लिए मिलेगा. इफ यू कंसीडर दिस सेट, दैट इज इफ यू कंसीडर द सेट correspond all those fx corresponding to x belongs to your domain d, तो ये जो होता है वो उसकी होती है रेंज ऑफ f. यहाँ तक पता है आपको? हाँ सर. Now if range of f is same as the codomain, then function is onto. याद आया कुछ? हाँ बराबर. ओके बराबर आता है मेरे को थोड़ा. हाँ इसमें कोडोमेन आपने आर लिया ना, या -1 to 1 लिया? किस में? साइन का. हाँ तो साइन का तो कोडोमेन तो मैंने अगर 1 1 on 2 बताना है तो फिर -1 to 1 लेना पड़ेगा. अगर आर लेते हो तो वो on 2 नहीं होगा. गेटिंग? ओके ये माइक ऑफ कर दो आप. समीर भाई माइक बंद कर दो यार अपना. डोंट वरी, हम यहाँ से उसको बंद करेंगे. ओके चलो. Okay. So basically we can do very well for this function also. We know the graph of e raised to x, something kind of ये टाइप का होता है. और ये तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा. तो इंक्रीजिंग हो जाएगा. फर्स्ट मेथड से भी हमें मिल गया. LMBT अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर, और e raised to x is different from 0. In fact e raised to x is always greater than 0. सो थियरम से भी हमें मिल गया. और अगर आप दो वैल्यूज लेते हो ना, x1 लेस देन x2, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो उसकी प्रॉपर्टी होती है e raised to x इज ऑलवेज लेस देन e raised to x2. सो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन. ओके सही है सर? नो? यस सर. यस सर. Yes, Okay, sir. so next Yes, sir. question Yes, for sir. so next question on your computer screen is this: fx is equals to e raised to x. We know that e raised to x satisfies the condition of LMVT, derivative greater than 0. So by theorem it is increasing for all x. और यहाँ पे for all x, that is you have to mention if the domain is given R or the domain whatever the domain is given. So for all x belongs to the domain. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको समझ जाना है. और अगर स्पेसिफाई नहीं किया है डोमेन, सो वी विल अज्यूम दैट द फंक्शन डिफाइंड ऑन R to R, that is set of real number to set of real number. Okay? Okay, sir. Shall we go ahead? यस सर. यस सर. Okay, let us consider the question x plus cos x. ऐसे तो आपका आंसर दिख गया, लेकिन मुझे फिर भी I have to write down for my purpose because मुझे satisfaction नहीं है x plus cos x. Okay, देखो ये तो पॉलिनोमियल है सिंपली, और cos x तो वेल बिहेवियर फंक्शन है. सो अल्टीमेटली LMVT तो अप्लाई हो जाएगी. कैसे? चलो फटाफट मुझे एक्सप्लेनेशन दे दो इसका. LMVT कैसे अप्लाई हो जाएगी?
सर बिकॉज एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स पॉलिनोमियल है और कॉज एक्स Cos फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल दोनों भी, तो का उनका सम भी सम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। गुड, वेरी गुड। ओके, सो एलएमवीटी सबको समझ आ गया क्यों सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर ओके, नाउ Yes, व्हाट sir. इज अवर नेक्स्ट टास्क इज, f dash x व्हाट विल बी एफ डैश F एक्स? dash x 1 माइनस साइन 1 एक्स। minus sin ओके, x नाउ ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ sin x फंक्शन की रेंज क्या होती है हमारे? x मैक्सिमम minus 1 to pi 1। by 2 to pi by 1 2 रेंज की 1 बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट -1 इट्स। से 1 ओके, सो yes ये जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही रह सकती है। सो व्हाट डज दैट इम्प्लाई, आइदर दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है एग्जैक्टली 1 तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मीन्स व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? इंक्रीजिंग। से यस और नो? यस सर। यस सर मैं थोड़ी एमबीबीएस वाली राइटिंग सीख रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग वैसा लिखा, वो दवाइयाँ लिख के देते हैं डॉक्टर, काइंड ऑफ। यस सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आए तो वही लिखना है कि सिर्फ इंक्रीजिंग ही लिखना है? आपको जो आपके सिलेबस के बेस पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अभी के लिए आपको इंक्रीजिंग वर्ड यूज करना है, यू शुड नॉट यूज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग काइंड ऑफ, यू हैव टू यूज ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग। जब लेटर ऑन जब जरूरत पड़ेगी तब आपको वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, वो तो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि कभी कहीं पे यूज हो ना तो काम लगे। ओके, बाकी कोई उसका अभी यूज है नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूँ उतना इनफ है, मोर देन यू शुड नो एटलीस्ट, यू बाकी कुछ नहीं। ओके, तो देखो अब हम कहाँ पहुँच गए। ये क्वेश्चन लिख लिए पे सबने, एक्सपोनेंशियल और x प्लस कॉस एक्स। यस सर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा आप करो ना। 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, मैं भी करूँगा आपके साथ में, लेकिन आप भी मुझे परफॉर्म करके बताओ एक बार। देखो 2x सर क्यूब, ट्राई करते हैं हाँ श्योर श्योर ट्राई करो, सर दैट इज गुड। क्वेश्चन तो सर क्वेश्चन तो लिख पॉली रहे पोलिनोमियल फंक्शन है भाई, तो आर टू आर अज्यूम कर लो, अगर नहीं दे रखा है ना, पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब होता है। So you can very well assume that f is a real valued function, so its domain codomain both are set of real number. क्वेश्चन लिख लिया, 2x Yes, क्यूब sir. माइनस 15x स्क्वायर और क्या था, प्लस प्लस 36x Plus plus 36x plus 1. प्लस 1। यस सर ओके, चलो फटाफट आप ट्राई करो, फिर मुझे सिखाओ कैसे करना है ये क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज ट्राई। एवरीवन ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? यस सर मुझे yes ना sir यस सर। अभी इतने Yes, दिनों sir. तक, जितने दिन Yes, मैंने sir. लेक्चर लिए, लेकिन मुझे सिर्फ 5 या 6 वैरायटी की आवाज़ें सुनने मिलती है और टोटल कैंडिडेट्स होते हैं 86। तो बाकी 80 लोग पता नहीं क्या है। आई Yes, थिंक sir, उनके, कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उनके वर्ड्स आई थिंक थोड़ा प्रीशियस है, सो वो यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते। रिस्पॉन्ड करो, जितना रिस्पॉन्स करोगे उतना इंटरेस्ट रहेगा लेक्चर में और मज़ा आएगी। बाकी पेपर में कुछ है नहीं इतना हार्ड जो मतलब हाई फाई आपको कुछ समझना पड़े जैसा, सो एंजॉय के Sir, साथ पढ़ो x is थोड़ा। decreasing from 2 to 3. Sorry, can you repeat? Decreasing whenever x From lies between. 2 to 3. Okay, 2 good. Then to 3. and increasing. Increasing from minus infinity to 2. Infinity. Union बस तो minus infinity to यूनियन, देखो माइनस इन्फिनिटी टू 2, देन infinity. सॉरी 3. 3 to infinity. 3 to 3 to infinity. Okay, infinity. so you are getting this. अब देखो आपने क्या किया होगा, इसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके और आपने सिर्फ ये मेथड यूज कर ली, सही यस और नो, कि कहाँ से हमें सिर्फ कंक्लूजन मिल जाए। एम आई राइट? यस सर। But this is for your purpose whenever you are asked to solve some
MCQ question. Okay, now our purpose is how to estimate. देखो सुबह मैंने एक बार ऑलरेडी कह दिया है कि हमारा पर्पस जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे तब कुछ भी करके ये एक्सप्रेशन लाना था, कहाँ से, a लेस देन c लेस देन b से. इस केस में हमारा क्या है, x लाइज इन सर्टन इंटरवल. फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरवल को i1 कह देता हूँ, इसको i2 कह देता हूँ और इसको i3 कह देता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल अज्यूम, सपोज ये हटा दो अभी, सपोज x लाइज इन इंटरवल 1, that is x lies in interval minus infinity to 2. That implies now what is our basic task, we have to estimate f dash x from this information, and उस information की बेस पे हमें f dash x का साइन जो है वो चेक करना है, वेदर इट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0. ओके, इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं वैसे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है. यहाँ तक क्लियर है सबको? और सबको ये जो इंटरवल इन लोगों ने बताया वही मिल रहे हैं या कुछ और मिल रहा है? अच्छा सा नहीं सर, यही मिल सर रहा वही मिल रहा है. सबको, है। 3x Yes, yes, sir. Same है. यही सबको यही मिल रहा है. Yes, sir. Yes, sir. गुड. ओके, चलो तो फिर अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सबने ये दिया है वो आंसर सही, और मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ वो मेथड शो करता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद दिस इंटरवल, बिकॉज इसमें क्या है ना, दोनों जो एंड पॉइंट है ना लिमिट के वो फाइनाइट है, तो आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, बट स्टार्ट हम सिंपल से करते, बहुत सिंपल से. ये हमको ऑलरेडी पता है कि हमें डिक्रीजिंग, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट f dash x लेस देन 0. ये रफली लिखना, ये पेपर में मत लिख देना कि ऐसा करना है. सो बेसिकली LMVT सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि फंक्शन अच्छा है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो आवर नेक्स्ट टास्क इज फाइंड आउट व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव क्विकली. 6x स्क्वायर 30x -36 36. plus 30. Can you take out 6 common? So therefore x square minus 5x plus 6. Can you fraction it out? इसको आप टुकड़े कर सकते हो. क्या आएगा? x minus 2, x minus Yes, sir. 3. Am I correct? -3. Yes. Okay. Yes, sir. यहाँ तक आके f dash x लिख के और यहाँ पे एक माइलस्टोन बना दो, 1 नंबर. ओके, स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना है, कुछ भी ज़्यादा वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है और बहुत सिंपल है, ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं विचार करने की जरूरत नहीं. अब आप क्या करो, जो आपको क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू इंटरवल मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ लेट अस टेक लेट i1 I डिनोट बाय 2 to 3. सो केस 1, केस तो बनेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटरवल है तो 3 केसेस बनेंगे. केस 1 क्या लेंगे हम, सपोज x बिलोंग्स टू i1 दैट इज x लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 2 to 3. से यस और नो, यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका मतलब क्या हो गया, x इज लाइज बिटवीन 2 to 3. अब क्या करो, इसको दो पार्ट में कर दो. 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन 3. अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, x minus 2. सो टेक दिस इन दिस साइड, सो 0 इज लेस देन x minus 2. अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, x minus 3. सो टेक 3 फ्रॉम दिस साइड, सो x minus 3 इज लेस देन 0. देखो अब इसको आप एक नंबर ट्रीट करो अल्फा, इसको आप एक नंबर ट्रीट करो बीटा. यू हैव अ पॉजिटिव नंबर एंड यू हैव अ नेगेटिव नंबर. अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, Negative. नेगेटिव. और ये 6 जो पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे 6 भी रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा. इसका मतलब क्या हो गया, हमने डेरिवेटिव एस्टिमेट कर लिया f dash x और वो लेस देन 0 है. देयरफॉर व्हाट विल हैपन, f इज Decrease. डिक्रीजिंग इन i1. क्लियर है 2 सबको? to 3. यस सर. i1 लिख Yes, दिया ना sir. भाई मैंने. हाँ यस सर. ओके, इजी. सर ये लास्ट वाली स्टेप थोड़ी हाँ मैं वापस री एक्सप्लेन करूँ. एक बार फिर से. Yes, नहीं sir. सर, सिर्फ बस ये लास्ट वाली स्टेप. ये जो लिखा वो देखो, हाँ ये जो एक्स की इनइक्वालिटी लिखी उसके बाद ब्रेक करने के बाद जो करा वो. ठीक है. देखो मेरा अल्टीमेट टास्क क्या है, मुझे f dash x लाना है कहीं से भी, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ से आप पहले टैली करो, आपको क्या चाहिए, x minus 2 चाहिए और x minus 3 चाहिए. तो आपने यहाँ से x minus 2 एक फाइंड कर सकते हो, मैंने वो फाइंड कर लिया. दूसरी साइड क्या हो रहा है वो मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है.
ओ हेलो, माइक ऑफ करो प्लीज। हु इज शी? प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। मुझे एक एक्सप्रेशन चाहिए x-2, आई गेट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एंड आई वांट x-3, सो आई गेट दिस एक्सप्रेशन। अब देखो ये एक तो पॉजिटिव नंबर है क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। फॉर टाइम बीइंग सपोज 5 ले लो, दिस इज योर नेगेटिव नंबर। फॉर द टाइम बीइंग आप ले लो इसको -1, यस so सर, आ गया। product of these two will be -5 which is less than 0। वही तो लिखा है मैंने। अब क्लियर है? यस सर। कुछ Yes, भी sir. डाउट हो आप पूछ सकते हो। क्लियर यहाँ पे हो जाए लेक्चर में, दैट इज गुड। ओके, सो नाउ शैल वी मूव टू द नेक्स्ट इंटरवल। व्हाट वाज द नेक्स्ट इंटरवल? हाँ हाँ बोलो बोलो, इसमें और मजा आएगा। दूसरे दो के लिए करने का है तो आपने बोला हाँ तो करना तो पड़ेगा ना, एक मैं करूंगा एक आप करोगे। ओके, सो आई विल डू दिस 3 to infinity। केस 3 लेट अस डिनोट I3, ये I2 कह देना इसको, और इसको I2 कहना, वो आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 to infinity। सो नाउ व्हाट विल हैपन? इसमें भी डिक्रीजिंग है। हाँ डिक्रीजिंग Increasing अच्छी है बात सर। है। वो आपके लिए, आप इंक्रीजिंग लिखवाया मुझे किसी ने यहाँ पे, देखो अब देखते चलो एस्टिमेट करके Increasing देखते। है। हाँ चलो ना एस्टिमेट करते उसके बाद जो भी पता चलेगा। ओके नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन नाउ, केस 2 और 3 whatever, suppose x lies in I3, that implies x lies in open interval 3 to infinity। अब infinity से छोटा तो हर एक नंबर होता है, so this is a worthless, इसको लिखने से कोई सेंस है ही नहीं। ओके, so only one information what we have, x is greater than 3। now we want x minus 3, so what we can do, we can transfer this into this side, so x minus 3। तो ये x एक एक्सप्रेशन मिल गया। what about this? can you say that 3 less than x, so 2 is also less than x, because we want this expression। say yes or no? अगर 3 less than x है तो 2 is also less than x, then what Yes, you can sir. do from this inequality, this। now what is your required expression? x minus 2, so transfer these 2 in this side, so 0 is less than x minus 2। देखो एक एक्सप्रेशन जो चाहिए था वो यहाँ से मिल गया, और दूसरा एक्सप्रेशन ये रहा। अब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। and you will multiply Positive. this by 6, then also this is positive। so ultimately what happen? f dash x greater than 0। Increasing function. very good। तो समझ आ गया सबको? यस सर। Yes. Yes, sir. okay, so third case you can try at your own, I will not get into that। चलो क्वेश्चन देख लेते फटाफट। here this is the function and it satisfies LMVT, f dash x is this। now first of all we will find out the critical point। क्रिटिकल पॉइंट को आप एक बार प्लॉट करके और थोड़ा एक बार मार्किंग कर लो ऐसे रफली कि हाँ यहाँ पे इंक्रीजिंग लाना, यहाँ पे डिक्रीजिंग लाना, यहाँ पे फिर से इंक्रीजिंग लाना काइंड ऑफ। देन कंसिडर द केस फॉर -infinity to 2 वाला केस ले लो, उसमें फिर एस्टिमेट कर लो। समझ आ रहा है ना सबको कि जल्दी जल्दी जा रहा हूँ मैं? आ रहा है सर। नहीं सर, आ रहा है। अदरवाइज क्या है ना, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं क्या पीडीएफ को थोड़ी फास्ट मूव कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी मैंने आपको करके बताया। अदरवाइज तो मैं भी यहाँ से पढ़ के बता देता ऐसा ऐसा कर लो, बट मैंने अभी जहाँ तक मेरे पास ये टैब है मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताने का ट्राई करूँगा, और जब टैब चला जाएगा तो कुछ और सॉल्यूशन करेंगे उसका। लिखने दो ना सर। हाँ हाँ लिखो 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 आराम से लिखो, क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई तो है जो लिख रहा है। इजी है ना ये क्वेश्चन? तो यस sir. ओके यस सर। थोड़ा लिख नीचे लिया? करो सर, ए हाँ पे। थोड़ा नीचे। So you are writing or you are taking screenshot? हाँ? Sir, writing. ओके, कौन कौन लिख रहा है जरा नाम बताओ अपना। सर थोड़ी सी स्लाइड ऊपर कर लोगे? सर हमने तो
आप उधर समझा रहे थे तभी साथ में लिख रहे। Yes, sir, we are writing. रफली जो मैं लिख रहा हूँ वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट उसको थोड़ा फेयरली लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ पीडीएफ। बाकी जो मैंने रफ में आपको जो एक्सप्लेन किया वही अल्टीमेट यहाँ पे लिख रहे हैं हम। सर हम लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू डाल के इसमें पुट करके? सुबह मैंने ऑलरेडी वो बताया था आपको। आप एक पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो वो अलग होता है, और आप पूरे इंटरवल के लिए चेक कर देखो ये क्या है ना, आर्बिट्रली कोई भी वैल्यू ले रहा है, इंटरवल -∞ to 2, और जो आप लोगे वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। स्पेसिफिक वैल्यू के लिए मुझे कोई कंडीशन नहीं चाहिए। आई वांट एवरीथिंग जस्ट फॉर एन इंटरवल, आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर अ सिंगलटन वैल्यू। यू आर गेटिंग द पॉइंट? हाँ बोलो। यस सर। थोड़ा नीचे अब अगर कीजिए आप ना। हाँ नीचे कीजिए ना, ये लो नीचे। डन? Yes, sir. I got it. यस सर, लिख लिया सर। See this, the third one case, वो तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग इन सम इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ऐसा आप एक बार लास्ट कंक्लूड कर सकते हो। ओके, यहाँ तक सबको? कोई डाउट हो Yes, तो पूछ लो एक Yes. बार। नो सर। ओके ओके, सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। आई विल मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। डिटरमिन द इंटरवल in which the function fx is equal to minus of x cube plus 7x square minus 8x minus 18। ये जो 8x लिखा है ना उसके बाद -18 है वो यहाँ आके लिख लिया है मैंने बिकॉज ऑफ पेज खत्म हो गया था। सो दिस यहाँ पे -18 आएगा, minus of x cube plus 7x square minus 8x minus 18, and the solution is this, increasing in 2/3 to 4 and decreasing in -∞ to 2/3 and 4 to infinity। so आपको ये सॉल्व खुद करना है। you can do by it your own। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। कर लोगे ना? अभी करना है सर? यस ना अभी नहीं करना है, सर ये x से बाद में करना। सर कर हाँ, लीजिए। माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18 अभी नहीं करना है, बाद में करना है। एक क्वेश्चन तो बाद में करो। Yes, sir. तो यहाँ तक देखो हमने बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन LMVT एंड ऑल कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो वट एवर वी नो ऑलरेडी, आपको डेरिवेटिव फॉर्मूला तो सारे ही पता होंगे। इनफैक्ट यू नो मोर देन मी द डेरिवेटिव फॉर्मूलाज। सो आपने हाइपरबोलिक फंक्शन कहीं पे पढ़ा है क्या? हाइपरबोलिक फंक्शन हाँ सर, You एक्सपोनेंशियल come का across- एवरेज। Yes, sir. you come across the formula hyperbolic of sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos hyperbolic। सिमिलरली हाँ, सर। cos hyperbolic x का sin, सिमिलरली sin cos tan hyperbolic x का होता है what, और जो रिमेनिंग 3 है उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगी, फर्स्ट 3 में पॉजिटिव। ये उसका रूल होता है हाइपरबोलिक का। से यस और नो? से Yes, यस और yes, sir. यस सर। सो बेसिकली अब हम इसकी थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे। व्हाट इज हाइपरबोलिक फंक्शन, व्हाट आर इट्स ग्राफ। ग्राफ हम प्रिसाइजली नहीं बनाएंगे बट वी शुड नो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ। डायरेक्टली हम उसको, और जिसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है वो ग्राफ प्लॉट कर सकता है। बाकी आई विल गिव यू द डायग्राम जस्ट हाउ द ग्राफ लुक लाइक्स।
Okay, so next task is for our is so what is our next task is hyperbolic functions and their graph. This is the next topic. Very easy. कुछ सर नहीं है ये इसमें. जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वैसे सर्कुलर फंक्शंस होते हैं. Sorry. ये हाइपरबोलिक फंक्शंस है ना, तो वैसे अलग दूसरे होंगे, मतलब सर्कुलर फंक्शन, एलिप्सॉइडल फंक्शन ऐसे होंगे. इलिप्सोइड फंक्शन नहीं होता, बट इलिप्सोइड एक शेपिंग तो आपने देखी है ना. 3D में अगर इलिप्स होता है तो उसको इलिप्सोइड कहते हैं. यू नो और नो? हाँ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हाइपरबोलिक नहीं नहीं फंक्शंस नहीं, बोलते नो हैं ना, नो, तो दूसरे आई नेवर कम अक्रॉस. नहीं अभी तक बोलते हैं मेरा नहीं ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं आया पढ़ने में. आई थिंक नहीं होगा ऐसा कुछ भी अलग कंसेप्ट जो आप बोल रहे हो ना. इलिप्टिकल फंक्शन दैट इज नॉट. हाँ, अगर कोई इक्वेशन है जो इलिप्स को सेटिस्फाई, फॉर एग्जांपल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होती है ना. और इसमें अगर Yes, sir. ए इज इक्वल टू बी हो जाता है तो वो सर्कल हो जाता है. सही यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप इसको एज ए फंक्शन ट्रीट करो ना, फॉर एग्जांपल नाउ यू सेपरेट आउट योर वाई एंड फाइंड आउट समथिंग इन ए फॉर्म ऑफ एफ एक्स, तो ये जो फंक्शन है उसको आप इलिप्टिक फंक्शन ऐसा रफली कह सकते हो, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना उसका शेपिंग जो होगा वो काइंड ऑफ, अगर ए बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे बड़ा होगा. अभी टाइम बिंग हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे ज़्यादा है. तो इलिप्टिक फंक्शन जैसा कुछ ही नहीं होता, बट हाँ जो फंक्शन है उसका शेपिंग हमको पता है कि हाँ इलिप्स बनेगा. दैट विल गिव इलिप्स. You will come across this topic in your geometry paper, geometry paper in second sem, I think. Okay. Okay, sir. Okay. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. So come to the definition. Everyone knows. First of all हम फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं. What is the definition of sine? और मुझे जो definitions चाहिए ना वो exponential को use करके चाहिए. Okay. I will use definitions. So what is sine hyperbolic x? Basically e raised to what? X. E raised to x. Then tell, complete करो definition फटाफट चलो. Plus What e is the raised to minus x. Plus e raised to minus x divided by 2. Yes. yes, sir. And what is cos Yes. hyperbolic x? E raised to x. करो कॉस्ट का लिखा आप पहले, उल्टा ये हो गया. माइनस आएगा आई थिंक, लेकिन मैं आपको पूछ के इसलिए कर रहा हूँ कि बोलो एक बार कुछ ना कुछ तो आंसर दो, कुछ ना कुछ आंसर प्रोवाइड करो उसके लिए मैं. सो e raised to x. यूलर फॉर्म से निकाला हुआ है. हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी डेफिनेशन है हाइपरबोलिक की. दिस इज वन ऑफ द, यू कैन फाइंड आउट इन सेवरल वेज. ये एक डेफिनेशन है. अभी हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक चल रहा है उस पर्पज से. सो बेसिकली यहाँ पे माइनस आएगा. सही यस और नो? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो कॉस में प्लस आएगा. अब ये दो डेफिनेशंस पता है, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आप फंक्शन फाइंड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल व्हाट इज tan हाइपरबोलिक x? रेशियो ऑफ sin अपॉन cos. 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर e raised to x, e raised to minus x, e raised to x plus e raised to minus x. सिमिलरली tan, उसके बाद आता है cot. cot is nothing but cos upon sin, so e raised to x plus e raised to minus x divided by e raised to x minus e raised to minus x. cot के बाद आता है sec hyperbolic x, that is nothing but 1 upon cos, therefore 2 upon e raised to x plus e raised to minus x, and final cosec hyperbolic x, that is nothing but what? 2 by e raised to x minus e raised to minus x. ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. यस Okay. सर. Yes, sir. यस सर. ओके चलो तो फटाफट इसका थोड़ा और देख लेते हैं. सो बेसिकली लेट अस रीराइट. व्हाट इज
sine hyperbolic x, that is nothing but e raised to x minus e raised to minus x divided by 2. Okay, so function जो है ऊपर का, that is exponential function, so that will satisfy. डाउट है किसी को इसमें? Anyone? किसी को कोई डाउट है? LMPT सेटिस्फाई क्यों करेगा उसमें? No, sir. Okay, so now what you can do, you can do this thing, take derivative on the both the side. So यहाँ तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और u माइनस v का डैश तो u डैश माइनस v डैश e raised to x, this minus and this minus will be plus and e raised to minus x, so this is nothing but Of course. so this is one formula, this is the one proof how the derivative of sine hyperbolic x is cos hyperbolic x. You can have very well different kind of other methods also. Then consider the function cos hyperbolic x, that is nothing but e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. You can take derivative on both the side, so e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. So basically this will be taken outside and u plus v dash, that is u dash, और ये e raised to x का minus और e raised to minus x, and this is nothing but our Sine hyperbolic. so this is the one proof, and similarly you can work out for tan and all. ये सिर्फ एक illustration था how the derivatives are derived from this definition. Okay, चलो तो अब देखो, next is the hyperbolic function and their graphs. These are the definition. चलो quickly note down कर लो इसको. Those who are writing, please quickly note down this. Done? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो अब graph of hyperbolic function. So first of all we will estimate its derivative. Derivative हमने already कर लिया है. एक दूसरी चीज थोड़ा आप ऑब्जर्व कर लो, वो तो लिखी हुई तो है यहाँ पे. साइन हाइपरबोलिक्स जो है उसकी डेफिनेशन है e raised to x minus e raised to minus divided by 2. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x is equal to 0 ले लेता हूँ, what will happen? e raised to 0 minus e raised to minus 0 divided by 2. What will be this? Tell me quickly. 0. Okay, so sine hyperbolic जो है if x is equal to 0 अभी टाइम बीइंग के लिए, ठीक है, and if you take cos hyperbolic x, so e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. अब ये 0 कब होगा बताओ? 90 degree. सॉरी, सर ये 0 होगा ही नहीं. ओके, और कोई है? होगा ही नहीं 0. Sure? आएगा ही नहीं. Okay, so this implication is wrong. So for no value Value of of x. is 0. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो ये Yes, 0 नहीं हो रहा है, ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टास्क है सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज cos hyperbolic x which is greater than 0. अब देखो, अब हमें cos के केस में डायरेक्टली नहीं पता है कुछ भी. We don't know whether it is greater than 0, but इसका डेफिनेशन अगर हम देखें, 0 हो जाएगा. we are not considering the case of complex number. Listen, we are working with only real numbers. We are working with real number. We are not considering the case I kind of. Okay. अब देखो exponential function होता है ना, that is never 0. In fact, exponential of x is always greater than 0. So ये भी greater than 0, ये भी greater than 0, क्योंकि ये ultimately है क्या, 1 upon e raised to x which is greater than 0. Divide by 2 करोगे तो भी greater than 0. Therefore, derivative of sine hyperbolic x which is nothing but cos hyperbolic x is greater than 0 for all x. Therefore, what will happen? Sine hyperbolic x is Increasing. increasing.
ओके नाउ ये जो है वो फटाफट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो लिखा है उसको. So this is the graph of, I will give you just the shape of the graph, I will not give only the precise graph. Okay, so sin hyperbolic x is increasing. कैसे increasing है वो देख लिया हमने already. This is the graph of sin hyperbolic x. करो आगे. Yes, sir. Shall I? Okay. Then the derivative of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x, and we have two cases. If x is greater than 0, then sin hyperbolic x is greater than 0, and x is less than 0, then it is negative. Therefore, what will happen? Function behave two types. That is, some interval में वो increasing होगा और some interval में वो decreasing हो जाएगा. And this is the graph of cos hyperbolic x. Okay. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Okay, अब इसका देखो, इसका डेरिवेटिव एस्टिमेट किया है. tan hyperbolic x is nothing but sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x. And what is sin hyperbolic x? E raised to x minus e raised to minus x by 2, and divided by e raised to x plus e raised to minus x by 2. So ultimately e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x. And you know what is the derivative of u upon v. So u dash v minus u v dash divided by v square. So देखो यहाँ पे v constant and derivative of u minus u constant derivative of v upon v square, and e raised to x e raised to minus x as it is, and derivative of e raised to x is e raised to x, and minus minus plus, so e raised to minus x minus ये e raised to x, ये जो टर्म है वो constant, and इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x whole square. Simplify this. तो यहाँ से क्या होगा, e raised to 2x और यहाँ से भी e raised to 2x, और ये माइनस साइन है, सो कैंसल आउट हो जाएंगे. Say yes or no? Yes, So sir. simplify Yes. here, nothing else. We just simplify it. After that, what we are getting? E raised to 2x plus 2 plus 2 plus e raised to minus 2x minus e raised to minus 2x minus 2 plus e raised to minus 2x. Just simplification किया, nothing else. And at the last we are getting 4 upon e raised to x plus e raised to minus x whole square. आप एक बार काउंटिंग करके देखो, आंसर आ रहा है आपका भी 4 upon something. Quickly. यस सर. Quick. Okay. So you are getting na? हाँ yes, sir. वो माइनस माइनस वाले टर्म का. अपॉन, हाँ 4 अपॉन e raised to x plus something. अब देखो नीचे तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और उसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 0, सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये जो नीचे का एक्सप्रेशन है, और ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो अल्टीमेटली दिस इज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन. एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, सो 2 अपॉन e raised to x plus e raised to minus x, दैट इज नथिंग बट cos hyperbolic x, but 1 upon cos hyperbolic x, and already we have one square here, that is nothing but 1 upon cos, that is sec and square, so sec square hyperbolic x या sec hyperbolic square x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाए. क्लियर इट? Yes, sir. Yes, sir. और देखो Yes, जो sir. डेरिवेटिव एस्टिमेट किया हमने, उसमें देखो लास्ट में एक स्क्वायर टर्म आ रही है, और उसमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी Increasing. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो इंक्रीजिंग हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 10. You can plot. Now we will take some limiting cases of 10. Okay, यहाँ तक आपने कर लिया? सर हाँ बोलो बोलो. सर ये तो इनवर्स के जैसा है ग्राफ. हाँ वो प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत ही चेंज होती है हाइपरबोलिक में, कुछ खास प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं. शायद आपको पता होगा, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, बट आई कैन टेल यू वन डिफरेंस. हम ये इनइक्वालिटी तो 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ पढ़ते हैं. तो हाइपरबोलिक यस सर. हाइपरबोलिक के केस में शायद ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत काइंड ऑफ यू कैन से लाइक हाइपरबोलिक फंक्शन का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है. सो आप इन्वर्स जैसा कहो या कुछ भी कहो, बट हैव डिफरेंट बिहेवियर. ओके, Yes, sir. यस सर. ओके. सो अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं. वी नो दैट व्हाट वी नो 10 कितना
10 पाई बाई 2 कितना होता है अभी? चॉकलेट Infinity. एंड व्हाट इज 10 माइनस पाई बाई 2? बोलो बोलो, माइनस Minus infinity. So Minus infinity. these are the limiting cases. We can very well write down limit as x tends to pi by 2 or say plus or minus pi by 2 10 ये 10 लिखा है हाँ मैंने डॉक्टर वाली भाषा में. चलो मैं इसको करेक्ट आउट कर देता हूँ. 10x is nothing but प्लस और माइनस इन्फिनिटी. मतलब प्लस लोगे पाई बाई 2 तो प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस टू माइनस. तो ये क्या लिमिटिंग केस है उसका. सो व्हाट अबाउट 10 हाइपरबोलिक x? इज इट बिहेवियर सेम? दोनों का बिहेवियर सेम है. सो फटाफट हम देख लेते हैं. व्हाट इज बेसिकली 10 hyperbolic x e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x. यही है ना. Yes सो sir. अब Yes. इसकी थोड़ा ये Yes. सिमिलैरिटी कि ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है. तो व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? फॉर चेकिंग दिस वी विल कंसिडर द लिमिटिंग केसेस कि कहाँ पे बिहेवियर सेम मिल रहा है. ओके सो देखो ये. सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये तो बेसिक लिमिट है, समझ आ जाएगा आपको. व्हाट अबाउट व्हेन एक्स टेंड्स टू Yes. इन्फिनिटी एंड व्हाट अबाउट एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी. ये लिमिट समझ आ गई. लिमिटिंग केसेस में 10 Yes, sir. -1 और 1 के E बीच raised में to बाउंडेड है. सॉरी ये लिमिट फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e raised to infinity करेंगे. कैसे e रेज टू इन्फिनिटी होगा भाई. देखो सर है ऊपर है. e रेज टू x प्लस e रेज सॉरी माइनस था ना यहाँ पे. e हाँ, रेज टू minus. माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस. व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सिंपलीफाई लिखो एकदम. हाँ बराबर. यार 12th मत भूल जाओ बीएससी में आके आप लोग. यहाँ से e रेज टू x मल्टीप्लाई कर दो या फिर e रेज टू x कॉमन ले लो. सो व्हाट विल हैपन, e रेज टू x 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड समथिंग समथिंग. सिमिलरली यहाँ से भी e रेज टू x कॉमन ले लो. सो 1 अपॉन e रेज टू 2x ये कैंसल आउट. यहाँ पे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बनेगा. सो 0 यहाँ पे भी 1 अपॉन इन्फिनिटी टाइप 0 और प्लस में एक में ऊपर क्या है 1 माइनस और एक में 1 प्लस. तो अल्टीमेटली क्या आएगा आंसर? 1. क्लियर. 12th Yes. क्लास Yes, मत भूल sir. जाओ. अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, 12th क्लास खत्म हुई है आपकी. तो सिमिलरली फॉर लॉकडाउन में माइनस सब कुछ लॉकडाउन में तो क्या बोलते हैं जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए ना. लॉकडाउन में तो जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करो यार. कितना टाइम क्या मजाक कर. मजाक कर रहा हूँ भैया. मजाक कर रहा हूँ. हाँ हनी सर मैं नहीं बोला मजाक कर, कोई और बोला. कोई और बोला मजाक कर रहा है. क्यों जेडब्ल्यू में नहीं जाना है किसी को? ओके सर की थी मैंने. हाँ 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 तो हम सबने दी होगी ना. हम एक दिन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मोटिव ऑफ योर लाइफ. लाइक बीएससी करना है तो क्यों करना है, तो उसके बाद क्या करना है. एक दिन 5-10 मिनट हम बात करेंगे अच्छे से. ओके Okay, sir. Okay, sir. तो ये 10 सर जब तब बेटर रहेगा. हाँ जब जैसे क्लास में तब ज्यादा बेटर रहता है ना, ऐसे ऑनलाइन तो फिर क्लास में मिलना तो पता नहीं कब होगा. फिर मैं कहाँ से लूँगा क्लास, मैं कहाँ से लूँगा. 5 बजे तक मेरा कंटिन्यू आज. हाँ सो 10 का जो आपका लिमिटिंग केस था वो सबको समझ आ गया ना. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. After that we will continue next class and now you can leave the meeting. Okay, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye bye. Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir.
बाय।